Assalamualaikum. My name is Rahat Devine from Division of Arts and Social Sciences for the subject of History of Western Art. The topic for today's lecture is Post-Impressionism. पोस्ट इम्प्रेशनिज़म से हमें समझ आती है कि लाइक जैसे लास्ट हम लोगों ने पढ़ा है इम्प्रेशनिज़म, उसके बाद की जो मूवमेंट है पोस्ट इम्प्रेशनिज़म, ये उसके रिएक्शन में जो थी वो स्टार्ट हुई थी. इसका टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन 1886 to 1905. Today we discuss main points of post-impressionism like inspiration, famous artists, main characteristics of post-impressionism, origin of post-impressionism. इंस्पिरेशन किसी भी मूवमेंट के स्टार्ट होने के लिए इंस्पिरेशन इज़ द वन ऑफ द की फैक्टर. The inspiration for the post-impressionism are landscapes, urban life, exotic theme, no single approach, rejection of illusion window onto the world, expressive use of color, line and brushstroke, color contrast, chromatic richness, pure color, Van Gogh curved lines. These are some of the main inspiration for the post-impressionism. Famous artists of this movement are Paul Cézanne, Paul Gauguin, George Seurat, Vincent van Gogh, Henri Toulouse-Lautrec. Introduction. Post-Impressionism is a prominently French art movement that developed roughly between 1886 and 1905 from the last Impressionist exhibition to the birth of Fauvism. जैसे कि आपने देखा होगा कि इम्प्रेशनिज़म की जब हमने बात की थी तो वो भी एक रिएक्शन था अगेंस्ट रियलिज़म के, जब जो था कि उनको कुछ आर्टिस्ट जो थे उनको एग्ज़िबिशन की परमिशन नहीं मिली थी, तो दे स्टार्ट देयर ओन मूवमेंट. तो इसी तरह से पोस्ट इम्प्रेशनिज़म इज़ ऑल्सो मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ अ मूवमेंट. Post-Impressionism emerged as a reaction against Impressionism, concern for the naturalistic depiction of light and color. The more focus of this movement was कि जो एक नेचुरल डिपिक्शन थी ऑफ कलर एंड लाइट की, वो इन्होंने जो थी वो रिजेक्ट कर दी थी कि दे यूज़ देयर ओन इमेजिनरी लाइट एंड कलर. Post-Impressionism extended Impressionism while rejecting its limitation. Post-Impressionism also part of Impressionism but rejection the limitation कि जो limitation थी Impressionism में कि वो जो है एक proper light source यूज़ करते थे, एक उन्होंने color palette अपनी develop कर ली थी. They reject these limitations. They continue using vivid color, often thick application of paint and real life subject matter, but were more inclined to emphasize geometrical forms, distort forms of expressive effects, and use unnatural and arbitrary color. जो उन्होंने रिजेक्ट की थी इम्प्रेशनिज़म की लिमिटेशन, और उन्होंने फोकस किया अपने कंटिन्यू किया उस चीज़ को, विविड कलर्स को, थिक एप्लीकेशन ऑफ पेंट्स को, नेचर रियल लाइफ सब्जेक्ट मैटर्स को, लेकिन एक अलग उसमें एक अलग स्टाइल में एम्फेसिस ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, उन्होंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जो थी वो अपने पेंटिंग्स में जो थी वो ऐड करना जो है वो स्टार्ट कर दी थी. और जो है डिस्टॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिव इफ़ेक्ट के जो उनका एक एंगल या पर्सपेक्टिव होता था वो बहुत डिस्टॉर्टेड सा जो होता था, वो आगे जाके हम लोग आर्टिस्ट के काम में भी आप लोगों को नज़र आएगा कि किस तरह से वो डिस्टॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें. एंड यूज़ अननेचुरल और आर्बिट्रेरी कलर की, मतलब कि उनका जो कलर पैलेट थी वो बहुत ही यूजुअल से जो हट के थी, वो अपने एक जो उनको कलर लगता था कि अपने कलर मिक्सिंग से जो एक नया कलर डेवलप करते थे, दे यूज़ दीज कलर्स. Due to the broad emphasis on more abstract qualities and symbolic meaning, post-impressionism can encompass sub-movements such as Neo Impressionism, Symbolism, Colonialism and Syntheticism. अब अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद में जो मूवमेंट आई, तो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म इज़ वन ऑफ द मूवमेंट जो कि इन सारी मूवमेंट लाइक सिम्बलिज़म, न्यू इम्प्रेशनिज़म, कलोनलिज़म की जो है जो इंस्पिरेशन बनी, या पोस्ट इम्प्रेशनिज़म ने इन मूवमेंट्स को आगे जाके जो है वो इन्फ्लुएंस किया.
Post Impressionists share their work with the public through independent exhibition across Paris. कि जो आपने पढ़ा होगा कि देखा होगा कि जो इम्प्रेशनिज्म थे, these artists are not publicly exhibit their work, but post impressionism artists थे, उन्होंने अपना काम जो था वो पब्लिक जो था वो इंडिपेंडेंट एग्जीबिशन उन्होंने करना स्टार्ट कर दी थी, और वो लोकली और पब्लिकली जो थे वो अपना काम जो थे वो एग्जिबिट कर देते हैं. In 1910, noted art critic, historian, and curator Roger Fry coined the term post-impressionism with his show Manet and Post-Impressionist. कि जो थे रॉजर फ्राई जो था उसने जो थे एक ये टर्म निकाली थी पोस्ट इम्प्रेशनिज्म. जब हम मेन करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं पोस्ट इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट के, तो उसमें आते हैं इमोशनल सिम्बलिज्म, evocative color, distinctive brushstrokes, creation of simplified and static composition. अब हम बात करते हैं ओरिजिन ऑफ इम्प्रेशनिज्म की. जो है वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जो है वो स्टार्ट किस तरह से हुआ, वो इमर्ज कहाँ से हुआ, बेसिकली उसकी ओरिजिन कहाँ से है. द टर्म पोस्ट इम्प्रेशनिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय इंग्लिश आर्टिस्ट एंड क्रिटिक रॉजर फ्राई इन 1906 and then again in 1910 when he organized the exhibition. एक इंग्लिश आर्टिस्ट और क्रिटिक थे रॉजर फ्राई, उन्होंने जो थे वो इस टर्म को जो है ना पहली दफ़ा 1906 में, फिर अगेन 1910 में जो है वो यूज़ किया. मैंने और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट के आर्टिस्ट जो थे उनके काम को देखते हुए, विच डिफाइन इट इज़ एज अ डेवलपमेंट ऑफ French art since मैंने a key figure in impressionist painting. जब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा क्लॉड मोने जो था इज़ वन ऑफ द की फिगर इन इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट. तो इसी तरह से जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का था उसमें जो थे ना वो एक की फिगर उसी तरह से जो है मैंने ने भी उसके आगे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की डेवलपमेंट में जो था मैंने ने जो अपना जो एक रोल जो है वो प्ले किया, क्योंकि उसके विद पैसेज ऑफ टाइम उसने अपना एक स्टाइल डेवलप किया, अपने जो था वो ज़्यादा जो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की टर्मिनोलॉजी वो आइडियोलॉजी थी उसको जो है उसने वो अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया. Fry believed that beauty of art is inherently rooted in perception. कि फ्राई का बिलीव था कि जो आर्ट होता है वो एक इनहेरिटेड होता है, इनहेरिटरी परसेप्शन है जो कि हर उसमें जो है वो होती है. आर्ट इज़ एन एक्सप्रेशन एंड स्टिमुलस टू द इमेजिनेटिव लाइफ रादर देन अ कॉपी ऑफ एक्चुअल लाइफ. अब देखिए कि जो उनका मेन कॉन्सेप्ट भी था, जो इम्प्रेशनिज़म की बात करते हैं या हम पोस्ट इम्प्रेशनिज़म की बात करते हैं, उनका ये था कि आपकी इंडिविजुअल इमेजिनेशन, इंडिविजुअल आइडिया, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट या जो है वो इंडिविजुअल विजुअलाइजेशन जो है वो क्या है, रादर देन एक्चुअल हमारी जो लाइफ जो है वो सराउंडिंग में जो हमारे सब्जेक्ट मैटर है उसके. तो इसी तरह से हमारे फ्राई ने भी बोला कि आर्ट बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, एक स्टिमुलस है इमेजिनेटिव लाइफ का, जो कि मुख्तलिफ है एक कॉपी ऑफ एक्चुअल लाइफ की. फ्राई एक्सप्लेन इन एन ऐसे इन एस्थेटिक्स आर्ट अप्रिशिएट्स इमोशन इन एंड फॉर इटसेल्फ. कि जो है आर्ट जो है अप्रिसिएशन है इमोशन की उसके लिए और इस उस में जो है द आर्टिस्ट इज़ द मोस्ट कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेंट ऑफ हिज सराउंडिंग्स एंड द लीस्ट अफेक्टेड बाय देयर इंट्रिंसिक एस्थेटिक वैल्यूज़. कि जो था उसके वो इस आर्टिस्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो वो इज़ रियली गुड ऑब्जर्वेंट, लेकिन उसने क्या किया था, उसका जो परसेप्शन था, चीज़ों को देखने का तरीका था, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का तरीका था, वो फार डिफरेंट था फ्रॉम द अदर आर्टिस्ट, फ्रॉम द अदर पर्सन. As he contemplated a particular field of vision, the aesthetically chaotic and accidental conjunction of forms and colors began to crystallize into a harmony. Today, these ideas help us to understand the common thread between these artists. अब ये था कि वो क्या था, उनका मेन फोकस इस चीज़ पे था कि जो हमारा चीज़ों को देखने का परसेप्शन है वो हम टोटली किस तरह से वो जो है अपनी आइडिया के, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंगली किस तरह से उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं.
फ्रेंच पेंटर पॉल सुजेन इज सेड टू बी द फादर ऑफ पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। अगर हम पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की बात करें कि वो बेसिक उसका जो है वो फादर फिगर उसका कौन है, तो वो पॉल सुजेन उसको माना जाता है। विद हिज वर्क ही सेट आउट टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटिंग, and he achieved this by reducing sub-object to their most basic shapes while retraining this saturated color of impressionism. उसने क्या किया, जो उसका काम था वो अगर हम उसके अर्ली पीरियड का काम देखें तो वो बहुत हमें इम्प्रेशनिस्ट वाला मिलता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो मोर रिफाइन होता गया, तो उसने क्या किया, उसने अपने जो सब्जेक्ट मैटर्स थे, जो ऑब्जेक्ट थे, उनको कम करना स्टार्ट कर दिया, उनको स्ट्रक्चराइज करना स्टार्ट किया, उनको बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया, और अपने उसने कलर सेचुरेशन पे काम किया। पॉल सुजेन Paul Cézanne was a French artist and post-impressionist painter whose work laid the foundation of the transition from the 19th century conception of artists endeavor to a new and radically different world of art in 20th century. पॉल सीजेन का जब हम काम की देखते हैं तो उसमें था कि जब वो उसने एक अपने सब ऑब्जेक्ट को एक शेप में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी कलर पैलेट को जो है वो ज़्यादा इन्हेंस करना स्टार्ट किया, तो वो एक ड्रास्टिक चेंज था फॉर द आर्टिस्ट उस टाइम के। और अगर हम मॉडर्न मूवमेंट की बात करते हैं, मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो एक की रोल प्ले किया। According to the Paul Cézanne, a work of art which did not begin in emotion is not a work of art. कि जो काम जो है वो आपका इमोशनली इस आप में उस काम में आपका इमोशन अटैच नहीं होता है, वो आपका वर्क ऑफ आर्ट कभी भी नहीं हो सकता है। ये पॉल सीजेन का कहना था कि जब भी हम कोई काम करते हैं, हम फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में, अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमारा उसमें कोई इमोशनली हम उस चीज़ के साथ अटैच नहीं है, या हमारा इमोशनल कंसर्न नहीं है उस चीज़ का, तो ऑब्वियसली वो चीज़ जो है वो उस तरह से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जब हम काम के अपने आर्ट की बात करते हैं, जब तक हम उसको इमोशनली उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीनरी बना रहे हैं, एक हम लैंडस्केप बना रहे हैं, लैंडस्केप पेंटिंग बना रहे हैं, तो जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, उसकी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर फील नहीं करेंगे कि उस लैंडस्केप की एक्चुअल फील क्या है, तो हम अपने कैनवस पे वो कभी भी नहीं जो है ना वो पोर्ट्रे कर सकेंगे, कभी भी पेंट नहीं कर सकेंगे उसका जो रियल एसेंस है। Cezanne is said to have formed the bridge between the 19th century Impressionism and early 20th century new line of artist inquiry Cubism. अब जैसे कि आपने देखा कि आपने पढ़ा कि जो है वो उसने जो है अपने ऑब्जेक्ट्स को जो था वो बेसिक शेप्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि स्टार्ट था 20th सेंचुरी में क्यूबिज़म का। क्यूबिज़म बेसिक अब आप लोग आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ क्यूबिज़म। Season often repetitive exploratory brushstroke are highly characterized and clearly recognizable. जो उसका एक स्टाइल था ब्रश स्ट्रोक का, वो बहुत ही रिच था। ब्रश स्ट्रोक उसके जो थे वो बहुत ही जो थे वो एक्सप्लोरेटरी होते थे, और लेकिन जो थे वो उसमें क्या था, वो क्लियरली रिकग्नाइजेबल होते थे। कलर डिफरेंस का हमें जो है वो कलर स्ट्रोक का जो है वो हमें पता चलता था। ही यूज planes of colors and small brush stroke but that build up टू फॉर्म कम्प्लेक्स फील। कि क्या था कि वो ब्रश स्ट्रोक से, वो छोटे ब्रश स्ट्रोक से बड़े ब्रश स्ट्रोक से ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करता था, जो कि एक हमें कम्प्लेक्स फील जो है वो उसका एक फील आनी शुरू हो जाती थी। द पेंटिंग कन्वे Cézane's intense study of his subject, both Matisse and Picasso are said to have remarked that Cézanne is a father of us all. कि बेसिकली जो उसकी सब्जेक्ट स्टडी थी पॉल सीजेन की, वो जो थी वो सबसे जो थी वो बेस्ट थी, कि वो किस तरह से एक नॉर्मल सब ऑब्जेक्ट को वो किस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो था वो बेसिक शेप्स में जो था वो किस तरह से कन्वर्ट करता था, या उसका जो था ऑब्जेक्ट को अपने पेंट करने का जो स्टाइल था उसका वो सबसे जो था वो डिफरेंट था। इसी वजह से जो हेनरी मैटिस हैं, पेब्लो पिकासो हैं, दे मार्क सीजेन एज अ फादर ऑफ अस ऑल, कि वो उनको अपना जो है वो फादर जो है वो कंसीडर करते हैं। ये कुछ पेंटिंग है उसकी पॉल सीजेन की पिरामिड ऑफ स्कल। हमने ये अभी वो काम है जो उनका अर्ली टाइम का काम है, कि आपको देख रहा होगा कि कितने रफ ब्रश स्ट्रोक जो है वो कितने बोल्ड और किस तरह से हैं, लेकिन हमें जो है एक रिफाइंड शेप जो है, रिफाइंड फॉर्म जो है वो भी नज़र आ रही है।
द बाथर। अभी ये भी देखें, अब देखें कि अब जो पहली वाली पेंटिंग देखी वो हमें उसमें थोड़ी सी रिफाइंड चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन ये जो था द बाथर, ये उनकी पेंटिंग एक बहुत फेमस पेंटिंग है, लेकिन उसका जो है कि उन्होंने जो उसका जो इम्प्रेशन है, जो उसकी डिटेलिंग है, उस पर उन्होंने वो ज़्यादा फोकस नहीं किया। उन्होंने जो उनका एक जो फील थी, जो एक इमोशन था या एक जो परसेप्शन थी, उन्होंने वही डायरेक्ट जो है वो पेंट किए। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं पॉल गुगेन। Paul Gauguin was a French in post-impressionism artist. Unappreciated until after his death, Gauguin is now recognized for his experimental use of color and synthetic style that were distinct from impressionism. कि जो था वो अपनी एक सिंथेटिक स्टाइल और जो थी ना वो जो उनकी कलर एक्सपेरिमेंटेशन थी उसकी वजह से तो वो फेमस थे, रिकॉग्नाइज थे। टुवर्ड द एंड ऑफ हिज लाइफ he spent 10 years in French Polynesia, and most of his paintings from this time depict people and landscape from that region. कि जो थे वो उन्होंने मोस्टली जो उनके सब्जेक्ट मैटर थे वो लैंडस्केप और अपनी सराउंडिंग के जो थे वो लोग थे। His work was influential to the French avant-garde and many other modern artists such as Pablo Picasso and Henri Matisse। कि जो उनका जो काम था वो हेनरी मैटिस और पेब्लो पिकासो जैसे आर्टिस्ट के लिए जो था वो एक इंस्पिरेशन था, इन्फ्लुएंशियल चीज़ थी। Gauguin's art became popular after his death, partially from the effort of art dealer Ambroise Vollard, who organized exhibition of his work late in his career and assisted in organizing two important पोस्ट पोस्थमस एग्जीबिशन इन पेरिस। अब सम टाइम ऐसा होता है कि जो कुछ आर्टिस्ट का होता है वो काम इतना डिफ्रेंशिएट होता है कि वो उस टाइम पे जो है वो उतना रिकग्नाइजेबल नहीं होता, बट आफ्टर देयर डेथ जो है वो उनका काम जो है, जो उनके उनसे रिलेटेड लोग होते हैं जिनको पता होता है कि इनका काम इस स्केल का है या इस लेवल का है, दे एग्जिबिटेड दे वर्क एंड दे बिकम रिकग्नाइज। इसी तरह से पॉल गुगेन के साथ भी यही सीन था कि उनका जो उनकी लाइफ टाइम में जो उनका काम था वो इतना अप्रिशिएटेबल नहीं था, बट आफ्टर हिज डेथ जो था वो उनकी ये काम की जब एग्जीबिशन लगाई, पब्लिकल एग्जीबिशन हुई, तो वो एक था जो उनका स्टाइल और जो उनका टेक्निक, जो उनके सब्जेक्ट और उनका कलर एप्लीकेशन का जो मेथड था वो उन लोगों ने देखा तो दे रियली अप्रिशिएटेड। Gauguin was an important figure in the Symbolist movement as a painter, sculptor, printmaker, ceramist and writer. अगर वो बाद में जो है ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम आता है, जैसे जैसे मूवमेंट्स आती हैं, आर्टिस्ट ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम मूवमेंट टू मूवमेंट। समटाइम उनका एक स्टाइल और होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मॉडर्न टेक्निक्स आती जाती हैं, मॉडर्न आइडियाज़ आइडियोलॉजीज़ मेथडोलॉजीज़ आती जाती हैं, तो वो भी अपडेट अपने आप को करते रहते हैं। His expression of the inherent meaning of the subject in his painting, under the influence of colonial style, paved the way to primitivism and the return to pastoral. He was also an influential proponent of wood engraving and woodcut as art forms। के जो था उन्होंने वुड कट और वुड आर्ट फॉर्म इंग्रेविंग कुछ जो क्योंकि स्कल्पचर भी उनका एक मेजर रहा था, तो उन्होंने उस चीज़ में भी जो है वो काम किया था। उनकी बहुत फेमस पेंटिंग है येलो क्राइस्ट। अब आप देख रहे होंगे कि उन्होंने इतनी डिटेल तो है ही नहीं इन लोगों के काम में। आपको जो नज़र आ रहा है एक उनका सिर्फ एक सेल्फ इम्प्रेशन या एक सेल्फ एक्सप्रेशन आपको जो है वो नज़र आता है। इसी तरह से ये स्टिल लाइफ विद प्रोफाइल ऑफ लेवल, ये के मतलब उन्होंने एक, हालांकि यह बहुत ही अनयूजुअल जो है वो एक हमारे हमें सब्जेक्ट मिलता है देखने के लिए कि हम इस तरह से हमें कभी भी उसके साथ स्टिल लाइफ के साथ पोर्ट्रेट जो है वो इस एंगल से, या जो एंगल उनकी डिवीजन थी, आप कलर एप्लीकेशन देखते हो कि कलर उनके कितने डिफरेंट हैं बाकी आर्टिस्ट की निस्बत। जॉर्ज सूरे की जब हम बात करते हैं, जॉर्ज सूरे वाला फ्रेंच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट, क्योंकि ये वो लोग थे जो फ्रेंच में थे और ये फ्रेंच मूवमेंट थी, तो इसीलिए जितने भी आर्टिस्ट हैं दे बेस्ड ऑन फ्रेंच। He is most known for his innovative use of drawing media and for devising the technique known as chromoluminescence, a style of painting which involved the separation of color into individual dots and patches which interacted optically, and pointillism, a technique in which small distinct dots of color are applied in pattern to form a image।
अब ये था कि इन्होंने एक अपना स्टाइल डेवलप किया कि जो थे इन्होंने बहुत छोटे ब्रश स्ट्रोक से जो थे वो डॉटेड फॉर्म में जो थे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन उनका जो एक इम्पैक्ट था, फुल पेंटिंग का इम्पैक्ट था, वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का ही था. Surya's artistic personality was compounded of qualities that are usually supposed to be opposed and incompetent. On the one hand, his extreme and delicate sensibility, on the other, a passion for logical abstraction and an almost mathematical precision of mind. कि क्या था कि उन्होंने जो एक अपना स्टाइल डेवलप किया वो बहुत ही प्रिसाइज, मैथमेटिकली प्रिसाइज स्टाइल था, और एक बहुत ही डेलिकेट और सेंसिबल जो था वो उस चीज़ को काम था. He is best known for devising a painting technique known as pointillism, while less famous than his painting. His Count crayon drawings are also granted a great deal of critical appreciation. जब उनके काम की बात करें, उनका काम बेसिकली पॉइंटलिज्म एक आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी एक प्रॉपर आर्ट मूवमेंट हुई थी जिसके जो थे ना सूर्य जो थे इज़ वन ऑफ द की फिगर फॉर दैट मूवमेंट. हिज लार्ज स्केल वर्क अ संडे आफ्टरनून ऑन द island of La Grande Janet is Surya is most famous piece and initiated new impressionism. Instead, the disciplined network of dots and blocks of color were painted to convey a sense of organization and premises to natural landscape and city scene. अब उनके जो सब्जेक्ट मैटर्स थे वो मोस्टली सिटी सीन होते थे या लैंडस्केप्स होते थे, लेकिन उनकी जो एक टेक्निक थी वो सबसे डिफ्रेंशिएट थी, जो कि इनको दूसरों से जो है वो मुख्तलिफ करती थी. अब ये है अ संडे ऑन ला ग्रैंड जेट बाय जॉर्ज सूरे. अगर अब आप इसको जूम करके देखेंगे तो जो है ये बहुत छोटे 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 जो हैं वो डॉट्स हैं जिनसे मिलके जो एक ये पेंटिंग जो है वो बनी है, लेकिन आपको जो है वो एक एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ हमें एक ब्रश स्ट्रोक का इम्प्रेशन जो है वो नज़र आता है, लेकिन जो है वो इतना इन डिटेल काम है ये. इसी तरह से द सर्कस, ये भी इस तरह से उन्होंने, क्योंकि उनकी टेक्निक थी स्मॉल ब्रश स्ट्रोक और डॉट, तो ये उसी तरह से जो है वो अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो आपको इसकी डिटेलिंग जो है वो ज़्यादा ऑब्वियस नज़र आएगी. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh is one of the famous post-impressionist painter. जब भी हम पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा जहन में किसी भी आर्टिस्ट का नाम आता है तो विंसेंट वैन गॉग इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके काम को जो है वो हम डिस्कस करते हैं. क्योंकि अगर हम ये इसलिए फेमस है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो हैं, पॉल सीज़ेन थे, पॉल गॉगेन हैं, सूर्य हैं, उनका काम भी बहुत मुख्तलिफ था, उनका टेक्निक्स, उनका स्टाइल बहुत डिफरेंट था, लेकिन जो वैन गॉग का काम था और जो इनका बैकग्राउंड अगर हम इम्पोर्टेंटली डिस्कस करें वो सबसे जो था वो डिफरेंट था. Vincent van Gogh was a Dutch post-impressionist painter who is among the most famous and influential figure in the history of Western art. In just over a decade, he created about 2100 artworks, including around 860 oil paintings, most of which date from the last 2 years of his life. कि जो उनका मोस्टली जो हम काम देखते हैं वो उनके लास्ट लाइफ पीरियड का जो है वो काम हमें ज़्यादा जो है वो नज़र आता है. They include landscapes, still life, portraits, self-portrait, and are characterized by bold color and dramatic, impulsive, and expressive brushwork that contribute to the foundation of modern art. और ये जो है वो जब हम देखते हैं इन्होंने उन्होंने हर सब्जेक्ट मैटर पे काम किया, लैंडस्केप पे भी काम किया उन्होंने, स्टिल लाइफ पे भी काम किया उन्होंने, पोर्ट्रेट्स पे भी काम किया उन्होंने, सेल्फ पोर्ट्रेट्स पे भी काम किया, लेकिन जो उनका एक ड्रामेटिक स्टाइल था बोल्ड कलर के साथ, वो जो था वो बहुत डिफरेंट था, बहुत जो था वो चेंज था बाकी आर्टिस्ट की निस्बत से, और वो जो था एक मॉडर्न आर्ट की जो थी वो बेस भी थी, फाउंडेशन भी बनी. He was not commercially successful and his suicide at 36 came after years of mental illness and poverty. के जो थे वो इनका एक जो डेथ थी वो एक सुसाइडल अटैम्प्ट थी, क्योंकि ये इनको एक मेंटल इलनेस थी जो कि वो काफ़ी सफ़र जो है वो इन्होंने किया. As a young man, he worked as an art dealer, often traveling, but became depressed after he was transferred to London. कि पहले जो वो बेसिकली जो थे वो एक आर्ट डीलर थे, बट आफ्टर डैट जब उन्होंने इतना ज़्यादा काम देखा अपनी सराउंडिंग में कि इतना ज़्यादा काम हो रहा है, तो दे वांट टू एक्सपेरिमेंट बाय हिज ओन.
He turned to religion and spent time as a Protestant missionary in South Belgium. He drifted in ill health and solitude before taking up painting in 1881, having moved back home with his parents. जब बेसिकली वो उनको मेंटल इशू जो स्टार्ट हुआ, वो जब आइसोलेशन में गया, तब उनका जो है वो उन्होंने पेंटिंग जो था वो मीडियम जो है वो अपना एक जो है वो सिलेक्ट किया. Starry Night is one of the best painting of Vincent van Gogh. अगर हम कभी भी किसी से पूछें जो अगर हम पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की बात करते हैं या मॉडर्न आर्ट की बात करते हैं, तो स्टेरी नाइट जो है वो हमारे इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग टिल नाउ. जो है इसमें आपको नज़र आ रहा हो कि बेसिकली एक ये उस टाइम की पेंटिंग है जब जो था वैन गॉग जो थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और ये इनको एक विंडो का सीन था जो उन्होंने पेंट किया. अब इससे हमें पता चलता है कि एक इंसान की परसेप्शन या एक इंसान की इमेजिनेशन जो है वो कितनी क्रिएटिव हो सकती है. अगर हमें विंडो से देखने पे हमें ये कभी भी ये नज़र नहीं आएगा. ये उनकी परसेप्शन थी जो उन्होंने ये देखा कि चाँद, सितारे और जो ट्रीज़ हैं वो किस तरह से हो सकते हैं, तो उन्होंने उस तरह से अपने एक आर्ट स्ट्रोक ब्रश स्ट्रोक के स्टाइल में जो उन्होंने पेंट किया. ये भी उनकी एक पेंटिंग है, अंडरग्राउंड विद टू फिगर्स. इस तरह से बेडरूम इन एरीज, इनके काम की अगर हम देखें तो वो हमें बहुत ही एक वो चीज़ मिलती है कि जिसमें जो थे ना जो एक तो हम अगर एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत डिफरेंट एंगल थे, बहुत एम्बिगुअस से एंगल थे कि जो था कि जो हमारे लिए एक डिस्टॉर्टेड एंगल्स जिनको जो है हम बोल सकते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एक बेडरूम का सीन देखो तो आपको इस तरह से एक बहुत ही एम्बिगुअस सा एंगल है कि इतने फोर ग्राउंड से जो है हमें किस तरह से पर्सपेक्टिव में चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं. रूफ जो है वो ऊपर से जो है वो वन पॉइंट पे जा रही है, और नीचे से जो बेड है वो किस तरह से है, और पर्सपेक्टिव उसका किस तरह से है. अगर हम इनके कलर्स की बात करें तो इनके कलर पहले जो थी वो बहुत रिच कलर्स थे. इन्होंने बहुत फ्रेश, बहुत ब्राइट कलर जो है वो यूज़ किए. और इन्होंने एज़ वी नो कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इन्होंने हर सब्जेक्ट मैटर पे जो है वो काम किया. इन्होंने लैंडस्केप हो, आपने देखा कि लैंडस्केप भी हैं अंदर, जो है इंटीरियर भी है. अगर हम इनकी सनफ्लावर देखें, एक इनकी पेंटिंग है वो स्टिल लाइफ में आ जाती है. इनका सेल्फ पोर्ट्रेट की अगर हम बात करें तो वो भी है. अगर हम एक इनकी पेंटिंग है पोटैटो ईटर्स, अगर हम उसकी बात करें तो वो भी एक डिफरेंट हमें इनका स्टाइल देखने को मिलता है, जिसमें इनके कलर पैलेट जो है वो बहुत ही जो है वो डार्क कलर्स इन्होंने जो है वो यूज़ किए हुए हैं. ये तो थी पोस्ट इम्प्रेशनिज़म. आज हमने डिस्कस किया ये सारा पोस्ट इम्प्रेशनिज़म को कि ये इसका बेसिक इंस्पिरेशन क्या थी, इसके जो थे फेमस आर्टिस्ट कौन से थे, इस मूवमेंट के जो थे मेन करेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और जो है वो आपने आर्टिस्ट का काम भी देखा कि किन लोगों ने किस किस तरह से जो है वो किन की टेक्निक्स में किस किस तरह से काम किया, और इनकी कलर पैलेट्स हमने देखी. और बेसिकली पोस्ट इम्प्रेशनिज़म इज़ अगर हम इसको मॉडर्निज़म मूवमेंट का नाम शायद जब जो भी लेट 80s में मूवमेंट स्टार्ट हुई हैं, दीज आर ऑल मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स. ये सारी जितनी भी आज हम मॉडर्न आर्ट देखते हैं, दीज आर सम ऑफ द इनिशियल मूवमेंट्स जो कि हमें आज भी इंस्पायर करती हैं, हमें आज भी इन्फ्लुएंस करती हैं. हमारे काम में आज भी इनका जो एक वो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को जो है वो नज़र आता है. आई होप कि आप लोगों को जो है ये आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा. अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप लोगों का जो है आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप लोग अपने क्योंकि ये गूगल क्लासरूम पे शेयर होता है, आप लोग वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी आप लोगों को आंसर दे सकते हैं. अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप लोग हमें जो है वो जैसे हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप लोग उसमें भी जो है वो कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. आई होप कि आप लोग के लिए ये जो है आज का लेक्चर बेनिफिशियल रहा होगा. और आप लोग एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग काइंडली जो भी आप मूवमेंट पढ़ते हैं एक दफ़ा आप उसको थॉरोली भी जो देखा करें. आप खुद की सर्च के लिए खुद की जो है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप आर्टिस्ट के काम को हम लोग को आप लोगों को जो देते हैं वो उनके बेस्ट काम की या उनके जो
है बेस्ट उनको एक्सप्लेन करते हैं, उसके उनके स्टाइल को हम वो आप लोगों को काम दिखाते हैं। तो काइंडली आप लोग जो है वो खुद अपने हैंड पे भी जो है इन चीज़ों को, जो इन आर्टिस्ट को, इन मूवमेंट्स को एक्सप्लोर किया करें, ताकि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा जो है वो लर्निंग हासिल हो। थैंक यू सो मच।